अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं स्पोर्ट्स हब के साथ। मैं हूं सूफी परवेज और आज के प्रोग्राम में बात हथलंगो प्रीमियर लीग की। हथलंगो ज़ेनगीर सोपोर में हथलंगो प्रीमियर लीग का आगाज रंगारंग माहौल में तमाशाइयों की कसीर तादाद की मौजूदगी में किया गया। पेश है इब्तिदाई तकरीब पर हमारे साथी कुयूम जहांगीरी की ये खास रिपोर्ट। और आज स्पोर्ट्स हब की टीम हथलंगो ज़ेनगीर इलाके में मौजूद है और यहाँ पे आज हथलंगो प्रीमियर लीग का आगाज़ हथलंगो गाँव के खूबसूरत स्पोर्ट्स फील्ड पे हुआ। इनाग्रल मैच जो था ये बांडीपुरा रेड्स और ज़नगीरा रेड्स के दरमियान खेला गया और इस इनाग्रल मैच में ज़नगीरा रेड्स ने बांडीपुरा क्रिकेट क्लब को हरा दिया। तो आज के जो मैन ऑफ द मैच थे ये थे जौहर खान और उनको एक ट्रॉफी इनाम दी गई। और ये जो हथलंगो प्रीमियर लीग ये स्पोर्ट्स काउंसिल हथलंगो के ज़ेर एहतमाम खेला जा रहा है और इसमें 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। इस हवाले से हमने यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर से बातचीत की तो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बरकत, आपका खैर मकदम है स्पोर्ट्स हब में। Thank you very much, and I appreciate your time, you being here. And main focus has always been to provide such a platform for the youngsters so that they can excel tomorrow in the cricketing careers and they could represent their state, they can represent on higher levels. So that has always been in our mind. So this is the 13th edition of Hethlango Premier League, and this is by far the best tournament we have been organized since last 15 years. We are trying our best to give all possible modern facilities to all the participants. You are having two parallel grounds here, and is this the best play field or which this Hethlango Premier League should be organized? No, this is not the field which was given to the for the sports things. That's on the other side of this playground. We have been approaching the higher authorities to maintain our cricket ground so that we don't have any problems and issues, but nothing has been done yet. After knocking the doors for so many times, we would like to request them take a look here. If things are to be needed, they get it done. You are just telling you have approached higher authorities. Can you nominate any of the authorities which lies in your mind to whom you have approached? We have approached Sports Council and our local Sports Council for Hethlango. They have Hethlango Sports Council. Yes, they have like approached so many administration levels, but nothing has been done yet. So we request all the particularly the Sports Council of Jammu and Kashmir, take a look at the cricket ground. If this playground is worth playing, so they take a look and get us the rights. What kind? Particularly the leveling of the cricket ground, which is the most important thing. There are so many things which needs to be taken care of. If you take a look on the ground, which has been originally given for the cricket and football activities here, so that's not worth playing. That's not, you can't even, you will tumble even if you are walking there. It's impossible to play in that. So you please take a look and get us the rights. Barakat, finally your message of Hethlango Premier League towards your society. Parents should particularly play a role in getting their children and getting their youngsters, let them express themselves, let them back their skills, and let them come out of the depression which COVID has caused from last 2 years. And our message is crystal clear that particularly cricket it's a growing sector from last 5-10 years, particularly in India. The youth involved in cricket, in football, in other sports activities, so that they can stay away from drugs and other social evils. बरकत अली, जिनकी तासुरात भी आपने जाने और साथ साथ हारिस भी हमारे दरमियान मौजूद। तो हारिस, सबसे पहले स्पोर्ट्स हब ऑफिशियल में आपका खैर मकदम। शुक्रिया, थैंक्स। हारिस, वादी कश्मीर में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया में और कश्मीर में भी बहुत सारे प्रीमियर लीग खेले जा रहे हैं और यहाँ पर भी हथलंगो प्रीमियर लीग खेला जा रहा है। तो ऑल टुगेदर ये प्रीमियर लीग किन बुनियादों पर आप खेल रहे हैं और क्या लेके आप खेल रहे हैं? सबसे पहले शुक्रिया कुयम साहब आपकी चैनल का, क्योंकि आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो कि आपने क्वेश्चन किया है लीगों के हवाले से, पूरे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट या अदर फुटबॉल, बाकी कबड्डी जो कि लीगें खेली जा रही, तो इस हथलंगो प्रीमियर लीग के हवाले से अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो लीग है
जहाँ पे दूर दूर से हमारे जंगेर के हर एक गांव से स्पेक्टेटर्स आते हैं इस लीग का आनंद लेने के लिए। इस हवाले से यहाँ पे इसका जो आज हमने 13th एडिशन स्टार्ट किया है, इसके लिए कुछ नया हमने कर दिया है, क्योंकि इस लीग के हवाले से हमने अपनी बॉल HPL हथलंगू प्रीमियर लीग की बॉल बनाई है। थोड़ी 2-3 दिन छुट्टी यहाँ पे ईद के हवाले से रही, तो अदरवाइज़ वो बॉल पहुँची होगी, बस 1-2 दिन में वो भी पहुँचने वाली है। बाकी यहाँ पे हमने हथलंगू प्रीमियर लीग के टेंट्स भी अपनी ही लीग पे बनवा लिए है, बाहर से वो भी पहुँच रहे हैं। तो डगआउट्स जो जिनकी आप बात करें वो भी पहुँच रहे हैं, HPL हथलंगू प्रीमियर लीग उन पे चस्पा होगा। तो कुछ नया हमने करने की कोशिश की है, क्योंकि स्पेक्टेटर्स चाहते हैं कुछ नया हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आज हमारी जो नौजवान नस्ल है ये मुख्तलिफ किस्म की जो कि खराबियों में मुलवस है, इनसे बाहर निकलने के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही वाहिद हल हमारे पास है। अगर हम इन नौजवानों को खेलों की ओर धकेलें तो खुद ब खुद वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसकी ओर ध्यान दे देंगे। तो यही हमारी कोशिश रहती है इस श्रृंखला के हवाले से। बिल्कुल ग्राउंडों की अगर हम बात करेंगे, जो कि आप कैमरा भी घुमा भी सकते हैं, हमारा मेन जो स्टेडियम है वो वहाँ पे खड़ा है। तो आज से तकरीबन 2013 की बात है, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे, जिनमें रमन बला आया था। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी 6 करोड़ रुपए की हमारे स्टेडियम में, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर्स लाए, उन्होंने तबाह कर दिया हमारे इस ग्राउंड को। तब से अब तक हम इस ग्राउंड में खेल भी नहीं रहे, और बाकी जो फंड्स की यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे इस ग्राउंड को मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन जहाँ तक आप खुद भी देख रहे हैं इसकी लेवलिंग उतनी अच्छी नहीं है। काफ़ी कोशिश हमने की है, अब यहाँ पे हम खेलते, क्योंकि वो जो ग्राउंड है पूरी तरह अभी ख़राब है, इसके हवाले से यहाँ पे चल रही है। अब हमारी यही कोशिश चल रही है कि हम आप वसादत से भी हम चाहते हैं कि हायर अथॉरिटी तक हमारी बात पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्टेटर बहुत ज़्यादा आते हैं। आप खुद भी देखते हैं हज़ारों में यहाँ पे आज तमाशा है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहिए, जो भी अथॉरिटी उस ग्राउंड को मेंटेन के लिए वर्कआउट कर रही थी, तो क्या आपने फिर उनको अकाउंटेबल बनाया? कहीं आपने फिर उनको एक बार फिर अप्रोच किया? आपके पास इतना बड़ा काम था करने के लिए, तो आपने अधूरा करके छोड़ा क्या? सर 2013 से हमने आई थिंक 10-15 बार उनको कांटेक्ट किया। एक अथॉरिटी थी, बिल्कुल उनकी एक फ़ाइल भी बनी है, कुछ सपोर्ट्स एसोसिएशन यहाँ पे था, और MLA हमारे जो उस दिन थे अब्दुल रशीद डार साहब, उसको भी हमने कांटेक्ट किया। उसके दौरान भी हमने एक फ़ाइल मंगवा ली, तो उन्होंने कहा इसकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इसकी। वहाँ उन्होंने कहा था आपकी जो कि स्टेडियम है इसकी एक फ़ाइल बनी है, लेकिन तब से भी अब तक तकरीबन 3 साल हो गए। हुकूमतें बदलती है, फिर इन मसलों को इग्नोर किया जाता है जो यहाँ पे रीत परीत हमारी कश्मीर में रहती है। तो वही कारण है जैसे कि हम यहाँ पे सफ़र करें इस ग्राउंड। मेरी यही उनसे गुजारिश है कि हमारे एरिया से इतने क्रिकेटर्स आते हैं, इतने स्पेक्टेटर्स आते हैं, आप मेहरबानी करके इस ग्राउंड की तरफ ध्यान दे दीजिए, और इस श्रृंखला की जो कि यहाँ पे श्रृंखलाएँ ऑर्गेनाइज होती रहती है, हमें यहाँ पे एक प्लेटफार्म जो उस दिन आपने वादा किया था हमसे, उस वादे को आप पूरा कर दीजिए। बाकी जो कि लोग हैं वो भी रिजल्ट देखना चाहते हैं। नाम बताइए। इरफान दिलावर भट्ट भट्टी। तो इरफान, जो आप यहाँ पे आज ये इनागुरल मैच देख रहे थे, और आपने क्या किस चीज़ को यहाँ पे अक्स किया, किस चीज़ की कमी है और क्या क्या अच्छा हुआ है? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपसे बात करने का मौका मिला है। इस ग्राउंड के हवाले हम बात करेंगे, ये फेमस ग्राउंड है जंगीर में, हथलंगू का ग्राउंड है। यहाँ बहुत लोग आते हैं मैच देखने के लिए, लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ बाकी भी ग्राउंड है, वहाँ उतने लोग नहीं जाते जहाँ यहाँ आते हैं, मगर ये ग्राउंड में वो फील्डिंग की ज़रूरत है और फेंसिंग की ज़रूरत है। उनकी जो डिमांड है ये पूरी होनी चाहिए। मैंने यहाँ कस किया है, मैं उनका पड़ोस में रहता हूँ भट्टियों में, कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं कब आऊँ यहाँ मैच खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत मज़ा है, बहुत लुत्फ़ होता है। यहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, लोगों का जज्बा भी ज़्यादा होता है, इसलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, इस ग्राउंड की तरफ तवज्जो देना चाहिए, उसको ठीक ठाक करना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंस है जंगीर में इस ग्राउंड की? बहुत ज़्यादा। यहाँ बहुत ग्राउंड है, 5-8 ग्राउंड हैं जो बड़े बड़े, मगर जैसा हथलंगू का ग्राउंड ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है जंगीर में। बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, इम्पोर्टेंस जहाँ ज़्यादा देना चाहिए, स्टेडियम बनाना चाहिए। ये थे कुयूम जहांगीरी। अगर आप स्पोर्ट्स हब की यूट्यूब चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स हब के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। वो हमारी वैली की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जा रही है।
اور یہ جو یہاں کا کراؤڈ آپ کا یہاں کی کراؤڈ کی بات جو ہے یہاں پہ کراؤڈ ہمیشہ بہت ہی انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے جی. ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھیلنے آتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ لطف اندوز ہوتے ہیں. جب برا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم ہمیں سپورٹ کریے, انشاءاللہ جب اچھا ٹائم ہو تو ویسے اس ٹائم سپورٹ کرتے ہیں. You are watching Sports Hub, like and share Sports Hub.